Welcome to the show Legends of Medicine. And I bring to you this evening, this pleasant evening, I, Dr. Pooja Diwan, bring to you yet another legend who is well-renowned, well-renowned, well-celebrated. This is Padma Shri Awardee Dr. Umesh Kumar Bharati. Welcome, Dr. Bharati, to the show. Namaskar, ma'am. Thank you. So, what really happens when you are bitten by a dog and you don't know whether the dog is vaccinated and protected against rabies or not, and whether the dog is rabid, and what would happen to you when you were to be bitten by a rabid dog or a dog whose status we don't know? And as humans, we really don't have a definitive cure for rabies once we are bitten by a rabid dog. Here is a man that we are introducing to you today, Dr. Bharati, a person who has spent 17 long years of research to find the right solution to protect yourself from getting a rabies infection in case you are bitten by a dog, affected with rabies as documented rabid dog or not. For we all know that prevention is better than cure. And Dr. Umesh Kumar Bharati, who currently is a state epidemiologist in the state of Himachal Pradesh, centered in Simla, the capital of Himachal. He is working for the State Institute of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare. Dr. Bharati stepped in as a path breaker with his research and revolutionized the treatment of rabies from a costly treatment to prevent us from getting affected at a whopping cost of 35,000 rupees to a simple measly cost of 350 rupees. His research and its outcomes were so efficacious that it set the world to think, and WHO had to revisit its protocols and imbibe what Dr. Bharati had brought forth to us in our face as a revolutionary treatment, a life-saving, cost-effective protocol. Dr. Bharati certainly deserves a Padma Shri for making such an impactful impression and reassuring us with his outcomes. Dr. Bharati, you are certainly a legend among legends to be celebrated on this show. Thank you. Dr. Bharati has had modest beginnings, and let us start with Dr. Bharati's journey right from his childhood days, his schooling in the government school in Himachal Pradesh, and thereafter. So let's hear your story, your voice, your style in this show. Thank you, Dr. Pooja, for these kind words and all the appreciation. I was born in a village, and a few days back I heard Dr. A.K. Bhalla. Yes, sir. We all are almost similar backgrounds, born in a village and then studying in a government school, and हमारे गांव में कुछ ऐसा गांव था कि मैंने बड़ी सारी पोइट्री अपने गांव पे लिखी है कि जहां मेरा गांव भी एक अजीब गांव है जहां उठने वालों को बिठाया जाता है और बैठने वालों को उठाया जाता है सामाजिकता की बेहतरी के नाम पर कि सब बराबर करने हैं. सो बड़ा एक अजीब सा गांव था और बड़ा अच्छा गांव था. तो वहाँ पे कोई चीज़ बेचता नहीं था, तो हमें लकड़ियाँ भी खुद लानी पड़ती थी, पानी भी खुद लाना पड़ता था, बाकी सफाई तो और बाकी काम तो करने होते थे. और क्योंकि मैं सोशल था तो गांव के रास्ते भी साफ करने थे, पशुओं के जो पानी पीने का बॉडी खुरली हम बोलते हैं वो भी साफ करनी होती थी, गाँव की बॉडियाँ भी साफ करनी होती थी, और जो गाँव के बुजुर्ग थे उनकी चिट्ठियाँ भी लिखनी होती थी और उनका भी पानी भरना होता था क्योंकि उनके लिए पैसे दे के भी पानी भरने के लिए गांव में कोई नहीं था. तो दैट वाज द विलेज, वेरी स्ट्रेंज विलेज. तो वहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा और गांव में कई बार हमें जब हम बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जब हम जाते थे तो कभी चीता और वो भालू लड़ रहे हैं, कभी सांप निकल आया, कभी वहाँ पे अजगर निकल आया, तो वहाँ से भागते थे और सीधा घर पहुँचते थे. मतलब बड़ा एक बड़े डरावना भी था लेकिन वो चार्मिंग भी. ऐसे गांव में रह के कुछ ऐसा ख्याल आते थे कि यार ये अनइक्वलिटी क्यों है. कुछ लोग कारों में जाते हैं और हमारे पास यहाँ जो है वो पैदल स्कूल जाते थे. आई यूज्ड टू गो अराउंड आई थिंक 6 किलोमीटर ऑन फुट. तो चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे जो भी हो,
तो इस तरह का गांव था। तो जिसके पास साइकिल होती थी वो साइकिल के डंडा और पूरा भरा था, हैंडल पे भी लोग बैठते थे, पीछे उस पे भी कैरियर पे भी लोग, 7-8 लोग बैठ जाते होंगे, दो आगे दो पीछे, एक गोद में एक पीछे में। तो इस तरह का वो, तो उन दिनों में ऐसा लगता था कि यार लोग गरीब क्यों हैं, लोगों को मतलब सबके पास पैसे क्यों नहीं है, गरीबी हटनी चाहिए और अनपढ़ता हटनी चाहिए। इस तरह के एक अजीब सा हमारा एक उस वक्त विचार थे। फिर हम जब बड़े बड़े लोगों की जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके अच्छे अच्छे बेटे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनको चिट्ठियां लिखते थे कि वो घर क्यों नहीं आ रहे हैं और बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया है। तो उस वक्त भी कई तरह के विचार मन में आते थे कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, वो अपने माँ बाप की सिर्फ पैसे भेजने से कुछ नहीं होता। यदि उनको पानी लाने के लिए कोई नहीं है, यदि उनकी लकड़ियां लाने के लिए कोई नहीं है, गांव में पैसे दे के कोई काम नहीं करने को तैयार है, तो वो कैसे जिएंगे। तो इस तरह के एक बड़ी कंट्राडिक्टिंग परिस्थितियों में हमारा बचपन बीता, और पढ़ाई भी करनी होती थी, काम भी करने होते थे। तो उस वक्त एक सोशल सर्विस जो है वो उस वक्त जो है वो शुरू हो गई थी बचपन में। और क्योंकि मैं अपनी क्लास का टॉपर था, तो गांव में टीचर भी उसी तरह के थे कि यदि मैंने कोई सवाल टीचर ने पूरा 2 घंटे लेके निकाला है, उसको यदि मैंने 20 मिनट में निकाल दिया तो मेरी पिटाई होगी कि तुम अपने हो। संक्षिप्त में उत्तर देना वाजिब नहीं है, विस्तार में ही आपको निबंध लिखना है। या फिर वो कहेंगे तुम एमबीडी तब होता था, मल्होत्रा बुक डिपो की बुक्स होती थी कि तुम वो पढ़ के आ जाते हो और हमें सिखाते हो। तो मतलब जैसे गूगल पढ़ के लोग अभी आते हैं, तो उस तरह का उनका मानना था। तो ऐसी बैकग्राउंड से जो है हमारा सफर शुरू हुआ। तो मैंने गांव में देखा कि लोग 3 तरह से परिस्थितियां हैं जो गांव में, जो बड़े जो कमाने वाले बच्चे हैं या कमाने वाली अडल्ट हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उनकी डेथ होती है। वो होती है या तो किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, या किसी सांप ने काट लिया, या कोई पेड़ से गिर गया, या पहाड़ से, क्योंकि पेड़ पे लोग चढ़ते हैं चारा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। तो वो चीजें मैंने देखी थी बचपन में, और मेरे को ये था कि मैंने इसके लिए कुछ करना है जिंदगी में। फिर कुछ ऐसा भी आता था कि नहीं, कुछ गरीबी हटाई जाए सब लोगों की। तो लोग बोलते थे कि प्रधानमंत्री बन जाओ या राष्ट्रपति बन जाओ तो तुम गरीबी हटा सकते हो। तो ऐसा भी ख्याल आता था कि कुछ पॉलिटिक्स में चल जाएं, या तो सिविल सर्विस में क्यों नहीं गए? पॉलिटिक्स है ही, सिविल सर्विस में नहीं गया। सिविल सर्विसेज का उस वक्त इतना वो था नहीं, ट्रेंड नहीं था वहाँ। उस वक्त ट्रेंड वही था कि डॉक्टर बन जाओ, या आप जो स्टेट सर्विस में है वो स्टेट का सर्विस करने, अदरवाइज जी आप हमारी स्टेट सर्विस में है ना? यस। तो जिस वक्त मैं पता था, इससे मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s की, उस वक्त जब मैं स्कूल में था, तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम थी हिमाचल में। बसें बड़ी लिमिटेड थी, रोड बड़े कम थे, स्कूल रोड हेड बड़े कम थे, गांव पहाड़ों पे स्कूल थे। और मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर थे, और टीचर भी थे तो उनकी कोई चलती नहीं थी। तो कोई भी उनको उठा के पहाड़ पे फेंक देता था और खुद रोड पे आ जाता था। तो इस तरह से वो हम बिल्कुल जंगलों में रहे, मतलब जिसको कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बचपन बीता। तो और ऐसी स्थिति देखी कि लोग कैसे मर रहे हैं, कि इनके पास पैसे नहीं है या उनके पास इलाज के लिए। तो वो एक इम्पैक्ट वो गांव बचपन से रहा। और जब ये एक फैसला हुआ घर में कि तुम डॉक्टर बन जाओ तो अपनी भी गरीबी दूर हो जाएगी और औरों की भी कर सकोगे, तो वो एक मेरी मदर ने बड़ा मेरे को कहा। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना भी बचपन में यही कहते थे ना कि अगर किसी का हित करना है और सही तरीके से समाज सेवा करनी है तो डॉक्टरी सेवा, मनुष्य की सेवा, रोगी की पीड़ा अगर तुम हर सकते हो तो वही सही पथ है। यही हम लोग को सिखाया जाता। तो बचपन में शायद इसी कारण मैं भी डॉक्टर बनी। अंग्रेजी में कह दें तो they used to say that medicine is a noble profession and you can reach out to the people and heal them. आरोग्य कर्मी को आज हम सलाम कर ही रहे हैं कोविड के समय पर। Yeah, that's true. तो फिर डॉक्टर बनना भी कोई आसान नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त कोई कोचिंग का कोई सिस्टम नहीं था, और स्कूल के टीचर जो पढ़ाते थे वो भी इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम उसको पढ़ के क्वालिफाई कर जाएं। तो इस तरह से एनीवे किसी तरह से मेडिकल में सिलेक्ट हुए। तो वहाँ भी हमने वो समाज सेवा का जो था वो जारी रहा। वहाँ भी कोई आई डोनेशन के कैंपेन है, वैक्सीनेशन के कैंपेन हैं, और किसी जिस तरह के सोशल अवेयरनेस के जो कैंपेन है वो हम कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में करते रहे। इस दौरान कुछ दिमाग में आया कि लोग जो है यदि पढ़ जाएं सारे लोग तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। तो कॉलेज में ही मैंने एक NGO बनाई
बाहर के लोगों से मिलके कुछ उसका नाम जो जो हमने एनजीओ बनाई, तो उसका काम ये था कि लोगों को पढ़ाना। तो जब भी अच्छा। मेरे को संडे को टाइम मिलता छुट्टी मिलती, तो हमने शिमला के आसपास की पंचायतें आपस में बांट ली हैं, और एक पांच पंचायत मेरे को भी दे दी, मूलकुट्टी जो सबसे दूर थी। तो मैंने सुबह जाना वहाँ पे और लोगों को पढ़ाने के लिए लेक्चर मोटिवेट करना, जो पढ़े लिखे थे, कि तुम औरों को पढ़ाओ, बुजुर्गों को पढ़ाओ, जो बच्चे छूट गए हैं, जो बच्चे अपंग हैं, जो जो जा नहीं सकते स्कूल किसी वजह से, पेरेंट्स की मजबूरी से, या फीस नहीं दे सकते, तो उनको पढ़ाओ। तो इस तरह का काम मेडिकल कॉलेज में चलता रहा। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जब मैं डॉक्टर बन गया और पोस्टिंग मेरी हो गई, तो उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल जो थी, वो पूरा साक्षरता अभियान के ऊपर ऑफिशियली एक डिसीजन ले चुकी थी कि हमने इसको चलाना है। तो उसको चलाने के लिए आई वॉज द ओनली एक्सपर्ट मेडिकल फील्ड से, जो कि टीचर्स को टीओटी कर सकता था, उनको पढ़ा सकता था कि कैसे आपने आगे बूढ़ों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को। तो आई वाज डिप्यूटेड फ्रॉम द मेडिकल टू द लिटरेसी कैंपेन। तो आई वाज कोऑर्डिनेटर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें लिटरेसी कैंपेन में मैं आई वाज द ओनली डॉक्टर हु वाज देयर। तो एक बड़ी सरप्राइज की चीज़ थी सबके लिए। और जब मैं हम पहले कला जत्था लेके जाते थे गांव में, फिर मोटिवेट करते थे, टीम्स बनाते थे। तो हमारी कला जत्था की टीम थी, जिसमें 11-12 मेंबर थे। एक लोकल फोक जो गाते हैं गाने, वो भी हमारे साथ थे। तो जा जाके मैं हारमोनियम बजाता था, और कोई ढोलकी बजाता था, कोई गाने गाते थे हम सारे लोग। तो गांव से एक गांव में जाना, भी दूसरे गांव में जाना, हमारे पास एक वैन होती थी। तो लोग सोचते थे ये डॉक्टर है भी कि नहीं, क्योंकि वो भी ऐसे आप मतलब सब पढ़ाने के लिए हारमोनियम बजाते हुए जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं। हाँ तो जी, वैसे हाँ जी, बिल्कुल सर। लोकगीत लोकोक्ति के लिए इसी तरह तो जो नाट्य मंडली होती थी, हाँ, और इकट्ठे करके जो कि बाद में बड़े बड़े एनजीओ ने स्पिक में की तरह करना शुरू करा। पर ये तो लोक कला है ना, और हिमाचल की तो खास लोक कला है कि जिसमें कि छोटी सी टोली होती है जो गांव गांव जाती है, और जो भी मॉरल संदेश है जो वो देना चाहती है, उसको संगीत और कविता और नाट्य के मंच से उसका संदेश का प्रचार करती है लोगों के हित में। ये तो पुरानी सी कला है और आज भी उजागर है। तो अच्छा, यूट्यूब पर देख लेते होंगे लोग। था तो यूट्यूब तब नहीं था। हाँ, तब तो ऐसा नहीं था। तब तो बड़ा एंटरटेनिंग होता था। गांव में जा रहे हैं, लाइव बजा रहे हो, अब लाइव लोग सुन रहे हैं। तो वो कोई लोग मेरे को आके पूछते थे कि आप सचमुच डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, या असली क्या डॉक्टर हैं, आदमी के डॉक्टर हो या वेटरनरी डॉक्टर हो? तो असली नकली ऐसे ही पूछा करते सर। असली नकली है कि पशु पक्षियों के हैं कि इंसानों के हैं। असली डॉक्टर इंसानों का होता है। इंसानों वाला डॉक्टर को ऐसे देखकर अचरज में पड़ जाते हैं लोग। या इवन कई बार जर्नलिस्ट से वही पूछते थे कि तुम सचमुच मतलब एमबीबीएस डॉक्टर हो, या मतलब क्या हो तुम? मतलब इट वाज सो स्ट्रेंज फॉर देम टू सी ए डॉक्टर गोइंग प्लेइंग हारमोनियम और गाने गा रहा हूँ, और बाकी लोग टीम के साथ, और लोगों को बोल रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, और जो भी कुरीतियां गाँव में हैं कि दहेज नहीं होना चाहिए, या जो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इस तरह से और तो और जब मेरे को कोई लड़की पसंद आ गई, और मैंने सोचा कि मैं आई शुड मैरी हर, एंड शी आल्सो एग्रीड। तो उसके पेरेंट्स ने भी पहले ही सवाल किया कि ये क्या डॉक्टर है भी कि नहीं, इसका पक्का पता कराओ। तो ऐसा हो गया कि मैं जल्दी ज्वाइन नहीं करूंगा तो ये शादी टूट जाएगी, शायद होएगी नहीं। आपने उन्हीं से शादी करी, मिसेस अर्चना फूल? हाँ, शी इज जर्नलिस्ट, यू नो, फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। नहीं, तब तो वो मेरे ख्याल इंडियन एक्सप्रेस में थी, या किसी जैसे स्ट्रिंगर होते हैं। She later came to Hindustan Times. Right. She's a very well-renowned person, and मुझे इस मंच पे बता के बहुत ही खुशी हुई कि जब मेरी तरफ से लोगों को पता चला कि आज आपसे मेरी मुलाकात होगी, तो मेरी सबसे पहले एक पेशेंट जिनका मैंने ट्रीटमेंट करा था, वो आपकी की वाइफ की पुरानी बचपन की दोस्त निकली शिमला की। और कहते हैं कि बहुत छोटी सी दुनिया है, और दिस स्टोरी हैज flown from Himachal to Delhi, and that's how I came to know of it. Yeah, that's so nice. So that's how things go, and that's how this journey, तो सर, आपने अपनी MBBS डॉक्टरी कहाँ से करी? Where was the basic ground of your education from? हाँ, फिर मैंने मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, यहाँ पे एडमिशन हुई, और यहाँ अपने एमबीबीएस
एडमिशन हुई थी आपके इंस्टीट्यूट में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। मैंने भी जब अपनी डॉक्टरी का परीक्षा दी थी तो ऑल इंडिया सीबीएसई के तहत मेरी ऑल इंडिया की तरफ से शिमला में एडमिशन हुई थी। फिर बाद में मैंने दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दिल्ली की स्टेट के एग्जाम से दिया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। जी जी बिल्कुल। तो बस डॉक्टर बन गए, सरकारी नौकरी में लग गए, और जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पोस्टिंग वाज टू डेपुटेशन टू लिटरेसी कैंपेन, और लिटरेसी कैंपेन से जब लगा कि जब शादी तो तभी होनी थी जब मैं वापस आता, तो मैं वापस ज्वाइन कर गया। और शादी के मेरे ख्याल 4-5 साल बाद आई वेंट टू WHO एज पुलिस सर्विलेंस ऑफिसर। तो मेरी पोस्टिंग बनारस में हुई। तो वहाँ भी मैंने बड़े मिशन से काम किया, और काम करने का फल तो पता ही है इंडिया में। पहले मेरे पास 3 जिले थे वहाँ पे WHO में, फिर 6 कर दिए, फिर 9 कर दिए। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ पॉपुलेशन मेरे पास दे दी। तो अब मैं मध्य प्रदेश से चलता था और नेपाल बॉर्डर पे रुकता था जाके। तो दैट्स हाउ बहुत काम वहाँ पे पुलिस सर्विलेंस में किया, और अच्छा काम किया। जितनी बाहर से टीम्स आती थी सारे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए, चाहे नर्सिस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे दूसरे लोग हों। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत सीखा वहाँ पे कि कैसे जो है लोग जो है वो नई इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो पॉलिसीज हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन वहाँ भी की बात सुन के और आपका लिटरेसी मिशन की बात सुन के मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है कि घर जालिया अपना मुराड़ा हाथ लिए, कि मैंने अपना घर जला लिया एक मशाल लेकर, और ये मशाल लिटरेसी की मशाल है जिससे मैंने जलाया। जो मेरे साथ अब अपने अंधकार रूपी अज्ञान मिटाना चाहता है साथ चले, और जो दीपक रूपी ज्ञान बढ़ाना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए। तो आपकी बात सुन के मेरे को वो याद है। सर, आप गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गीत संगीत में आपकी रुचि है या आपकी हॉबी है? हाँ, वो एक्चुअली मैं गाता भी हूँ, हारमोनियम भी बजाता हूँ, मैं फ्लूट भी बजाता हूँ, मैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट सारे बजा लेता हूँ। तो कितने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? 4-5 हारमोनियम, तबला, ढोलक। ऑर्गन भी बजाते हैं? सॉरी, माउथ ऑर्गन थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ। अब काफी समय से नहीं बजाया। लॉकडाउन में मैंने जरूर हारमोनियम कई सालों बाद निकाला, फ्लूट भी निकाली और अपने दोस्तों को पोस्ट की वो जरूर किया। मैंने हारमोनियम, तानपुरा और तबला निकाला क्योंकि वो समय मिला। क्या आप शौक थे, पैशन थे, फॉर्मल ट्रेनिंग ली भी है? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बस ऐसे ही। तो फोक सॉन्ग्स आप हिमाचल के जरूर गाते होंगे सर? हाँ, बिल्कुल गाते हैं। हाँ, नाइस सर। थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें, थोड़ा लाइट दें हमारे ऑडियंस के लिए कि जो ये रेबीज की बीमारी है, ये एक वायरल बीमारी है. So rabies is a viral infection which affects many animals, particularly dogs and monkeys. And they, when they bite humans, can spread the infection to the humans through the saliva. So when a bite happens, what really is the course of the disease which happens in the human beings? क्या होता है मनुष्य को एक काटने के बाद कि रेबीज का हमें इस बीमारी का तोड़ नहीं मिला. यदि हमें बीमारी हो जाए तो इसका इलाज नहीं है, पर इस बीमारी हमें ना फैले, हम इसे रोकथाम कर पाए, उसके लिए तो हमने वैक्सीन और एंटीसेरम के फॉर्म में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाई है. पर यदि किसी को बीमारी होती है तो वो रेबीज से मर क्यों जाता है और उसकी इतनी फास्ट प्रोग्रेशन, इतनी गतिशीलता के साथ वो बीमारी क्यों फैलती है. और आज के दिन में अगर किसी को रेबिड बाइट हो जाए तो उसमें से शायद 0% ही लोग बचते हैं. आप इसके बारे में कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि आपने इलाज क्या निकाला. जी सर. देखिए, जब कोई एनिमल काटता है तो उसके जो थूक में, सलाइवा में वायरस होता है रेबीज का. तो वो क्या होता है कि जब वो बाइट करता है तो वो सलाइवा भी बाइट में लग जाता है. तो घाव पे जो सलाइवा लग जाता है तो उसमें सलाइवा में वायरस होता है. वो वायरस जो है वहाँ मल्टीप्लाई करने शुरू कर देता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जब बाइट हो जाए तो फर्स्ट एड इज कि बहते पानी के नीचे 15 मिनट धोने का, जो नलके के नीचे धोने का, प्रेशर से धोने का. वो एक मकसद ये है कि मैक्सिमम सलाइवा निकल जाए, तो उसके बाद वायरस भी फिजिकली रिमूव हो जाएगा.
और फिर वही सर जैसे टेटनस में करते हैं कि जितना ज्यादा धो लो, जितना ज्यादा क्लीन कर लो उस वक्त, इसी तरह रेबीज के साथ। हाँ, तो और फिर उसको एंटीसेप्टिक लगा लो, उससे भी कोई भी एंटीसेप्टिक लगा लो, तो वायरस मैक्सिमम वायरस जो है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो जब वो सलाइवा के साथ जो वायरस घाव में आ जाता है, तो घाव में वो वायरस मल्टीप्लाई करता है, और कोई भी नर्व एंडिंग जो घाव की वजह से जो है एक्सपोज्ड होगी, बाहर निकली होगी, उससे वो अटैच हो जाएगा, और फिर वो असेंड करेगा, ब्रेन के ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे नर्व में, ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में पूरा इन्फेक्शन कर देगा। तो उस वक्त जाके जो है हमें जब वो वायरस जो अटैच हो जाता है और चलने लगता है, तो हमें जहाँ भी बाइट होता है वो टिंगलिंग सेंसेशन या पेरेस्थेसिया, थोड़ा सा नमनेस लगती है, और जो ब्रेन में चला जाता है तो पूरा हमें उसके सिम्टम आने लग जाते हैं कि वो पूरा ब्रेन इरिटेट हो जाता है, एंसेफेलाइटिस हो जाती है। तो उसमें हमें एजिटेशन होती है पेशेंट को, या उसको जैसे कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, पानी से डर लग रहा है उसको, हवा से डर लग रहा है उसको, जोर से बोलने उससे डर रहा है, इस तरह के जो फोबियाज हैं उसको आने शुरू हो जाते हैं, और 3-4 दिन में उसकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि बेसिकली मोस्टली डेथ इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो ये मिडिल ब्रेन को, जो मिडिल ब्रेन है उसको, तो वहाँ में इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है, और डिरेल हो जाए, इमोशनल सिस्टम डिरेल होता है, और प्लस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेलुअर्स जो हैं वो होते हैं, इसलिए इसकी रैपिड डेथ हो जाती है। बड़े कम लोग पूरी दुनिया में 15 या 20 के करीब लोग जो हैं वो बचे हैं, लेकिन उसकी वो जिसको कहते हैं कि वो एक भाग्य से बचे हैं, उसके मैकेनिज्म समझ नहीं आया कि कैसे बचे, और मैक्सिमम लोग जो बचे हैं वो पैरालिसिस के साथ बचे हैं। हार्डली एक या दो लोग जो हैं वो 100% नॉर्मल हुए, शायद एक लड़की न्यूरोलॉजिकली स्प्रेड कर रहा है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी इसको रोक नहीं पाता ना सर? नहीं पाता, हाँ, बिकॉज इट इज थ्रू द नर्व्स एंड नर्व्स गो थ्रू दिस बैरियर, तो इसीलिए वो बचना मुश्किल होता है एक बार रेबीज होगी तो। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, तो इसलिए कहते हैं कि जो वायरस जो घाव में, इसमें एक रेबीज वैक्सीनेशन एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इंसिडेंस होने के बाद दी जाती है, यानी घटना होगी उसके बाद देना, तो नहीं तो वैक्सीनेशन पहले होती है कि प्रोटेक्शन के लिए, तो वो इसलिए है कि जो एनिमल्स हैं उनकी वैक्सीनेशन तो पहले हो जाती है ना सर? जो एनिमल्स हैं उनको रेबीज ना हो उसके लिए वैक्सीनेशन पहले हो जाती है, और मनुष्य में तब करी जाती है जब उसको काट लेता है कोई एनिमल। सही कह रहे हैं सर? हाँ, नहीं, मनुष्य में पहले कर सकते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं, हम देते भी हैं, वेटरनरी डॉक्टरों को देते हैं, या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको देते हैं, तो वो भी दे सकते हैं हम पहले, पर मतलब वो भी एक सिस्टम है, और बाइट के बाद देने का भी सिस्टम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वैक्सीन को हम इसलिए बाद में दे पाते हैं क्योंकि वायरस थोड़ा टाइम लेता है मल्टीप्लाई करने के लिए, सो वी हैव फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, जिसमें वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है टू न्यूट्रलाइज द वायरस इन द वुंड। तो घाव में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव टू गिव द सीरम एंड उसको आई मीन बाकी जगह न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज के लिए हम वैक्सीन देते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि यदि वायरस वंस इट अटैचेस टू द नर्व, फिर हम जितना मर्जी वैक्सीन और जितना मर्जी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दें, वो रेबीज होनी है। फिर वंस इट अटैचेस टू द नर्व, कितना समय लगता है उसको नर्व के साथ अटैच होने में काटने के बाद? समटाइम हमने ऐसे भी केसेस हैं जिनमें डॉग ने बाइट किया और सीधा फेशियल या शियाटिक नर्व पे वो चला गया बाइट, और सीधा नर्व पे डिपॉजिट हो गया, तो इट मे टेक फ्यू आवर्स for the virus to attach to the nerve because it is already on the nerve. बाकी जगह it may take it may remain dormant for few days to few months. जब इसको अपना एनवायरनमेंट ठीक मिलेगा उसी वक्त मल्टीप्लाई करेगा। तो किस जगह आपको काटा जा रहा है? यदि आपको ऐसी जगह पे काटा जा रहा है जहाँ से एक बड़ी सी नर्व ट्रैवल ही कर रही है, वो बात अलग है, और अगर ये सॉफ्ट टिश्यू बाइट है जहाँ पे बारीक बारीक नर्व्स होंगी और कोई मोटी नर्व नहीं होगी, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि वो वहां से ज्यादा फास्ट जाएगा जहाँ पे मेन बड़ी नर्व है, और सॉफ्ट टिश्यू से स्लो जाएगा। यू कैन से सॉफ्ट टिश्यू में थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि इट हैज टू मल्टीप्लाई टू रीच ए नर्व, सो वो नर्व कितनी दूर है और वो सारा डिपेंड करेगा, लेकिन इट कैन डायरेक्टली अटैच टू द नर्व इफ द बाइट इज डायरेक्टली ऑन द नर्व। सो ये बड़ी कम्प्लेक्सिटी है रेबीज वायरस की, दैट्स व्हाई ये एक डिसीज है जो कि 3000 BC से चली आ रही है, कंदराओं में इसके वर्णन है, और
हम जितना ट्राई करते हैं उतना ही एस्केप कर लेता है, कुछ और बन जाता है, कुछ और मैकेनिज्म तो ले लेता हम जो वैक्सीन लिया करते थे पहले, जो कि कहते थे कि अरे अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया है और वो डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है या डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि उसका टीकाकरण हुआ है, खासकर जो कि सड़कों पे आवारा कुत्ते घूमते हैं या इंडी डॉग्स हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनके बारे में हमें नहीं अवगत होता कि उन लोगों का टीकाकरण रेबीज के से बचने के लिए हुआ है कि नहीं, तो उनके लिए एक तो वैक्सीन लगाते थे। तो पहले तो वैक्सीन वो पेट में जो 14 दिन तक लगातार वैक्सीन लगा करती थी, एब्डोमेन में वो होता था, और साथ में एक इंजेक्शन लगता था जो कि एंटीसेरम का इंजेक्शन था उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इमीडिएटली। और फिर एंटीसेरम के जो वायरस था, जो इंजेक्शन था वो एक्वाइन था, यानी घोड़ों से बनता था। फिर उसको ह्यूमन से भी बनाने की कोशिश करी, तो जो एक्वाइन वाला था वो कंपैरेटिवली सस्ता है और उससे एलर्जिक रिएक्शन काफी ज्यादा हो सकते हैं, और खासकर अगर अचानक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाए तो किसी की डेथ भी हो सकती है, अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम दूसरे वाले इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल करने लगे, और पर वो जो है वो महंगा भी था, फिर शेल्फ लाइफ की भी तकलीफ थी। तो आपने जो इम्यूनोग्लोबुलिन का आईएम लगता था उसको आपने वूंड की साइड पे इंट्राडर्मल लगाना शुरू करा। ये जो सारा ख्याल आपका आया और जो आपने इसमें स्टडी करी कि आपने जो 2000 मरीजों का इलाज किया अपने तरफ से, जहां उनको आपने वैक्सीन तो लगवाई ही, साथ में आपने इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर मसल में न लगा के बल्कि जहां पर काटा गया था उस जगह पर इंट्राडर्मली यानी कि चमड़ी में लगा के उसकी तह से, सतह से थोड़ा सा नीचे, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें से 26 तो ऐसे डॉग्स थे, कुत्ते थे जिनको रेबीज डॉक्यूमेंटेड था, और वो सारे के सारे 2000 जो मरीज थे वो सारे के सारे एक को भी रेबीज नहीं हुई, सभी बच गए। और उसके चलते आपकी ये जो रिसर्च थी, ये जो ट्रायल था, ये जो ट्रीटमेंट था वो आगे बढ़ा। हम चाहते हैं कि आप अपनी हमारी ऑडियंस को विस्तार में बताएं कि इसमें पूरी प्रक्रिया क्या थी, क्या क्या आपको कठिनाई बाधाएं आई और किस तरह से आपने इसका इजाद किया। ये कहानी बड़ी लंबी है। एक्चुअली मैंने जब सन 2000 में WHO से वापस आके DDU हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला। यस मैम। सो वहाँ मैंने लोग जो हैं वो डॉग बाइट की ट्रीटमेंट जो है वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि इक्वाइन से रिएक्शन होता है, तो लोग ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन लिखते थे, उधर लोग वैक्सीन नहीं ले पाते थे, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या लेंगे, क्योंकि वैक्सीन भी 2250 रुपए की आती थी। तो ऐसा ही इंसिडेंस एक इस दौरान हुआ कि एक टैक्सी ड्राइवर की पता लगा उसको वो आया था, उसको पागल कुत्ते ने काटा था, हॉस्पिटल आया था, उसको हमने वैक्सीन ही लिखते थे उस वक्त, क्योंकि हम लोग ले अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, तो वैक्सीन लिखी जो 2250 रुपए की थी। तो थोड़े दिनों बाद पता लगा कि वो उसकी डेथ रेबीज से होगी। किसी ने मुझे बताया कि वो आपने दवाई तो लिखी थी लेकिन उसने ली नहीं, क्योंकि उसकी टैक्सी ड्राइवर था, 3000 रुपये तो उसकी महीने की तनख्वाह थी, तो 2250 की दवाई कैसे लेता। तो वो एक बड़ा मेरे लिए एक बड़ा जिसको कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैंने जिंदगी में सोचा था कि करेंगे इनके लिए, लोगों के लिए, तो कुछ कर नहीं पाए। तो उसके बाद मैंने बड़ा स्पीड अप कर दिया इसके ऊपर पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना, रिसर्च पढ़ना। तो उसमें पता लगा कि यदि हम वैक्सीन को रेबीज वैक्सीन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन पे बाद में आऊंगा, तो इसको हम यदि इंट्रामस्कुलर की बजाय इंट्राडर्मल लगाएं तो 5 गुना जो है इसकी कीमत कम हो सकती है। तो वो चीज मैंने जो है उसको करें कैसे, क्योंकि WHO ने भी कहा कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा कर सकते हैं, लेकिन कोई कर नहीं रहा था। तो मैं अपने CMO के पास गया और मैंने कहा सर एक ऐसा कुछ कर सकते हैं, अभी आजकल वैक्सीन भी नहीं मिल रही है मार्केट में, तो इसको इंट्रामस्कुलर की बजाय इंट्राडर्मल लगाते हैं। तो उन्होंने मेरे को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू पहले पढ़ लिख के आ, तो पहले PG कर ले, तो तुम हमें सिखाओगे, एम्स नहीं कर रहा, जिपमर नहीं कर रहा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं कर रहा, PGI चंडीगढ़ नहीं कर रहा, तो तुम मतलब यहाँ छोटे से अस्पताल में एक नया लोग मरने हैं क्या क्या, तो एक बूंद से तुम इलाज करोगे लोगों का। तो एक बड़ा उन्होंने मेरे को डिप्रेस किया, और हालांकि वाज माय वेरी जिसको कहते हैं रिस्पेक्टेबल सीनियर। सर वैक्सीन तो कई सारे टीके लगते हैं, तो अगर एक ही टीका हमारा वैक्सीन का जो डोजेज है, कई सारी डोजेज लगती है ना, तो अगर एक ही 2250 का है तो वो एक ही वैक्सीन
को ही हम एक जगह साइट पे एक ही बार इंजेक्ट करते? नहीं मैम, अभी मैं साइट पे इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। इम्यूनोग्लोबुलिन जो साइट पे लगाते हैं उसमें बाद में आऊंगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि कैसे सारा इलाज सस्ता हुआ। तो उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने डॉक्टर्स में बात की, उन्होंने भी ये कहा कि तुम पहले खुद पढ़ लो यार, फिर हमें पढ़ाना, मतलब इस तरह के कमेंट्स जो थे वो थे। तो व्हेन आई वाज 41 इयर्स ओल्ड आई अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने एपिडेमोलॉजी के लिए अप्लाई किया चेन्नई में, और मैं यहाँ से एपिडेमोलॉजी मैंने वहाँ से की। और इन बिटवीन जो है वैक्सीन बिल्कुल मार्केट से गायब हो गई और बल्कि अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे को उन्हीं सीएमओ ने बुलाया कि यार तुमने एक दिन बोला था कि एक वायल से उसके 5 वायल लगते हैं, मतलब आज 0 डे पे लगा, 3 डे पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे, 28 दिन पे, 90 डे 6 वायल लगते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वायल बड़े कम है और हमें स्कूल के बच्चों को वैक्सीन लगानी है, वहाँ पे कोई पागल गाय का दूध पी लिया किसी बच्चों ने। तो उन्होंने बोला जैसे मर्जी लगा, मेरी जान छुड़ा, तुमने बड़ा जब पॉलिटिकल प्रेशर है तुम ये वायल ले जाओ और लगाओ। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डूइंग इंट्राडर्मल। तो दैट्स वाई फिर हमने एक बार कर लिया तो उन्होंने देखा सब ठीक है, बच्चे वैसे तो गाय के दूध से कुछ होता भी नहीं है, अब रिकमेंडेशन है कि नहीं लगाने हैं। तो बाद में हमने किसी तरह से वो क्लिनिक में शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि हमारे क्लिनिक में बड़े इक्का दुक्का 2-3 लोग आते हैं। तो हमने क्या किया कि पूलिंग स्ट्रेटजी की कि जितने भी हमारे जितने आसपास की डिस्पेंसरियां हैं जहाँ पे बंदर के कट्टे, कुत्ते के कट्टे जो लोग आएंगे, वो फर्स्ट एड के बाद वो हमारे सेंट्रलाइज डीडीओ हॉस्पिटल भेजेंगे। तो हम उन पेशेंट को कहते थे कि भाई तुम एक वायल ले आओ, बाकी के वायल हम फ्री लगाएंगे। तो एक्चुअली हम फ्री नहीं लगाते थे, हम क्या करते थे, मान लो 4 लोग आ गए, एक एक वायल सब ले आए, तो एक वायल हम चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि कम लगती है इंट्राडर्मल, 0.1 0.2 ml लगती है। तो एक वायल हम 4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी 3 वायल हम फ्रिज में रख लेंगे। तो अगली बार जब वो चारों आएंगे बिना वायल के, तो हम फ्रिज से वायल निकालेंगे उन्हीं का खरीदा हुआ, और वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से 4 वायल से होते थे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो पुअर लोग हैं वो 2 to 3 टाइम्स हमारे पास बढ़ गए, और दूर दूर से, यहाँ से सिरमौर से दूर 150-200 किलोमीटर से आने लगी, चौपाल से, और वो यहाँ रहते 1 महीना अपने रिश्तेदारों के पास और इंजेक्शन लगवाते हैं 350 रुपए में, मतलब 2250 रुपए की वैक्सीन का इलाज 350 में हो गया। तो इसको हमने कहा पूलिंग स्ट्रेटजी, और इसके ऊपर हमने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट किया इसको, और WHO को इतना पसंद आया कि वो दे कॉल्ड मी टू जिनेवा। एक डोज जो लग रही थी वो 2250 की लग रही थी। अब क्योंकि हम उसको कम वॉल्यूम में यूज कर रहे थे इंट्राडर्मली, तो एक डोज अब 350 रुपए की पड़ी, पर लगनी तो 6 डोजेस थी। नहीं मैम, एक डोज नहीं है, डोज तो पहले 6 वायल लगते थे ना। मान लो मैं आज आया, पूरा वायल लगता था इंट्रामस्कुलर में, 0, 3, 7, 14, 28, 90, 6 वायल लाने पड़ते थे, और एक वायल 350 का होता था, तो 2250 के करीब चला गया। तो 6 डोज लगते थे। तो अब क्या है, इंट्राडर्मल में 4 डोज लगते हैं, लेकिन उसमें लगते हैं 0.1 ml एक तरफ, 0.1 ml दूसरी स्किन में, तो टोटल डोज 0.2 ml लगता है। तो वायल को शेयर करना पड़ता है। तो दैट वाज द पूलिंग टेक्निक ऑफ हिमाचल, वी कॉल्ड इट। एंड जब हमने इसको डॉक्यूमेंट किया, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2010 आई वाज कॉल्ड बाय WHO इन मॉन्ट्रू टू प्रेजेंट दिस पूलिंग टेक्निक, बिकॉज WHO वाज सरप्राइज्ड कि हम कब से कह रहे हैं, 2006 से कह रहे हैं कि इसको लगाओ लगाओ, क्यों नहीं लगा पा रही। तो इसलिए नहीं लगा पा रहे थे कि शेयरिंग ऑफ वायल कैसे हो, पूलिंग कैसे हो, कैसे हम लोगों को, तो एक क्योंकि लेस वॉल्यूम में वो कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं थी, डिस्पेंस ही नहीं हो रही, और अगर लेता भी कोई उस प्रोटोकॉल से तो बाकी वेस्ट होता। तो शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा, उसने कहा होगा अगर पूरा ला रहा है तो चलो पूरा उसको लगा देते हैं आयन के परस्पेक्टिव से। बिल्कुल। सो हमारा पूरी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमारा पहला क्लिनिक था जहाँ पे इंट्राडर्मल शुरू हुई प्रैक्टिकली, और इसकी कीमत इतनी कम हुई, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर मेरे सीएमओ ने कहा कि यार ये तो हम इतना कम खर्चा आ रहा है कि हम फ्री दे सकते हैं। तो दैट्स हाउ शिमला जिला में फ्री कर दी। तो जब एक सीएमओ ने फ्री की, तो बाकी धीरे धीरे सारे हिमाचल में फ्री होगी, सारे 12 जिलों में फ्री होगी, और अवेलेबल भी होगी। नहीं तो पहले जो होता है इसकी बड़ी शॉर्टेज होती थी, 6 टाइम ज्यादा लगती थी। ओबियसली जो है शॉर्टेज भी कम होगी और सस्ता भी हो गया, और स्किन में लगने की बजाय पेन भी कम थी, रिएक्शन भी कम था, तो सारी चीजें कम होती थी। तो ये एक प्रोटोकॉल था जो कि ऑलरेडी WHO ने अप्रूव कर रखा था, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने किया इसको प्रॉपरली। सो दैट वाज वन स्टोरी। तो इस सारे इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा कि मेरी एक एज ए इम्प्लीमेंटर, एज ए रिसर्चर, थोड़ी सी अपने सीनियर्स के आगे थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं भी ठीक काम करता है। That is very humble of you, आप इतने साल से उसमें काम कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि हमारे बड़ों का हमें मान देना चाहिए, और बिल्कुल आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और हमली कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी होगी। हाँ नहीं, वो मानना जरूरी है, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। पहले मैं सीएमओ साहब से कई दिन बात नहीं की, मेरे को कमरे से निकाल दिया, मेरे को बोला तू पीजी करके आओ,
है ना, तुम मेरे को, मैं पीजी हूँ, मुझे समझाओगे, मतलब इस तरह की बात जो होता है, जैसे गुस्से होना। तो जब मैंने पीजी की तो मुझे वाकई लगा कि नहीं यार, ये मुझे आप समझाइए रिसर्च होती कैसे है, ये तो पता नहीं था मेरे को, ये तो मैं बीइंग एमबीबीएस कर ही नहीं सकता था। तो दैट्स व्हाई एंड देन आई रियलाइज एंड देन मैंने उन सीएमओ साहब को बड़ा उनके पहुंच हुई और उनको बोला कि आपने सर मेरे को यहाँ तक, मतलब आपने रिसर्च करनी सिखा दी। तो इन द मीन टाइम क्या है कि अब लोग जो है वो वैक्सीन अफोर्ड, अब तो वैक्सीन फ्री हो गई थी पूरे हिमाचल में, और रेबी से डेथ भी कम हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की डेथ हो रही थी, जो वो इसलिए कि इम्यूनोग्लोबिन नहीं मिल रही थी, इम्यूनोग्लोबिन लगा भी नहीं रहे थे, मिल भी नहीं रही थी। तो मैं बीच बीच में सोच रहा था कि इसको कैसे दूसरे एक इंजेक्शन को सस्ता कर दिया, और जब डब्ल्यूएचओ ने प्रेज की तो मुझे और भी ज्यादा हौसला आया। तो मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि दूसरे इंजेक्शन को भी सस्ता करना है, करें कैसे इसको। तो वो एक बड़ा बड़ा संघर्ष था, क्योंकि डब्ल्यू जिसको भी मैंने कहना कि ऐसे ऐसे हम कुछ प्रोटोकॉल चेंज कर देते हैं, इसका कुछ करते हैं, तो वो सारे हंसते थे कि अरे तुम डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकॉल चेंज करोगे। तो वो बड़े बड़े लोग जो थे उनको मैंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल बनाया सिर्फ घाव में लगाने का, तो ये आप कर लो, क्योंकि मैं तो कभी रेबीज पे काम किया ही नहीं है, ना मेरे को इसमें एक्सपर्टीज है। तो दे रिफ्यूज एंड दे लाफ्ड आल्सो कि ये बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में लोग नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे। तो मुझे लगा कि चलो फिर हम भी छोड़ देते हैं। हम जब सारे लोग बोलते हैं तो बीच बीच में काफी डिस्करेज हो जाता है, जब हमारे एक्सपर्ट ये बोलते थे कि तुम हमेशा फजूल की बात करते हो। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे मेडिकल कॉलेज में बुलाया, वहाँ एक रेबिड पेशेंट था, उसने 4 इंजेक्शन जो है वैक्सीन लगा रखी थी, इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगा रखी थी, एंड ही वाज क्राइंग एंड ही वाज बहुत बुरी तरह से फिट्स उसको पड़ रहे थे, और वो एजिटेटेड था, और उसकी वाइफ रो रही थी बुरी तरह से। तो वो अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ रेबीज। तो मुझे लगा यार देखो, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं, तो कुछ तो करना चाहिए। तो जो मैं प्रोटोकॉल बना रहा था कि सिर्फ घाव में लगाया जाए, बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स, और अटेंडिंग सो मेनी कॉन्फ्रेंसेज, इंटरेक्टिंग विद सो मेनी एक्सपर्ट्स, तो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया कि इसको मैं अब इसको शुरू करें। मैं क्योंकि अब और मैं डेथ नहीं दे सकता। ऐसी डेथ जो अफोर्डेबल है, जो मतलब जो कि जिसको प्रिवेंट नॉट अफोर्डेबल, प्रिवेंटेबल है, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कम पैसे में कर सकते हैं। तो फिर मैंने कोशिश की, जो बड़े रेबीज के एक्सपर्ट हैं इंडिया में, उनसे कांटेक्ट किया, उनको कहा कि मेरे से कोलैबोरेट करो या ऐसी। तो नोबडी वाज रेडी फॉर दैट, सेइंग कि नहीं भाई, तुम तो तुम्हारा अपना नाम तो है नहीं, तुम हमारा भी डुबाओगे, क्योंकि ऐसा काम ऐसा काम जो है कोई पागल आदमी कर सकता। तो मुझे लगा कि नहीं, कोई नहीं करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो मैंने वो किसी तरह से वो प्रोटोकॉल जो है, वो जो हमारी एथिकल कमेटी, हमें मेडिकल कॉलेज में नहीं था, इसलिए कोई कमेटी भी नहीं थी। तो मैंने हमारे आसपास जो भी इंस्टीट्यूशन थे, हमारे एक बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो कभी कभी मेरे को गेस्ट लेक्चर के लिए भी बुलाते थे। तो वहाँ भी एक फ्रेंड थे हमारे, तो उनको मैंने बताया कि इस तरह से यदि हम करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो देन आई गॉट अप्रूवल फ्रॉम देयर एंड देन वी स्टार्टेड। तो उससे पहले मैंने एक मीटिंग की सारे डॉक्टर्स की, रिपन के जो हमारा रेडियो हॉस्पिटल है, उसमें मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये प्रोटोकॉल क्यों सही है, और क्या इसके पीछे साइंस है, और क्यों हमें करना चाहिए। और इस वक्त जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो चलो कम से कम बजाय घाव में लगाओ और फिर मसल में लगाओ इम्यूनोग्लोबुलिन, सिर्फ हम घाव में लगाएंगे, एटलीस्ट इट वुड सेव देयर लाइव्स। तो ये उनकी बात समझ आई, क्योंकि हिमाचल के जो हमारे डॉक्टर हैं वो काफी ऑनेस्ट भी हैं और काफी इमोशनल भी हैं। और मोर ओवर, जैसे आपने कहा कि मैं सबको रिस्पेक्ट करता था और सबकी नाइटें भी दे देता था बीइंग ए जूनियर, तो उनको लगा कि नहीं, और पहले भी वो देख चुके काम को, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, इसको शुरू करते हैं। तो दैट्स हाउ जून 2014 में, आफ्टर ऑल अप्रूवल्स, हमने वी स्टार्टेड डूइंग दिस। तो जिसको कहते हैं सिर मंडाते ही ओले पड़े, एक पंडित जी आगे कि मेरे को तो मार्केश है, मैं तो बचूंगा नहीं। तो हम डर गए, इंटरनली हम डर गए कि बस अब काम होने वाला तुम्हारा, क्योंकि अब ये मर गया कहीं तो लोग बोलेंगे ले दिए, तो उन्होंने गलत प्रोटोकॉल लगा दिया। ऐसे ही थोड़े कुछ महीनों बाद कोई वकील आ गया कि नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यदि मेरे को कुछ हुआ तो, मतलब ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो इस तरह से दैट्स हाउ वी। फिर कुछ सीनियर्स ने कहा कि जब हम तेरे प्रोटोकॉल को नहीं मानते, जब तक कि पागल जो लेबोरेटरी से कंफर्म पागल कुत्ते होंगे, उनने जिनको काटा और उनको तुमने अपने प्रोटोकॉल से ठीक किया, तब हम मानेंगे। तो उस तरह से काफी लोगों को काटा था, लेकिन हमने 26 लोग ऐसे थे जो जिनको कंफर्म था। वैसे बहुत सारे थे, लेकिन 26 हमने ऐसे लिए जिनको कोई एक्सटर्नल वेरिफिकेशन एजेंसी। रेबिड डॉग को ट्रेस करना, उसे कैच करना, वो अपने में ही एक पूरी मुहिम है। वो भी एक लंबी ट्रेसिंग होती है, वैसे रेबिड डॉग ट्रेसिंग, फिर उनको पकड़ना, फिर टेस्ट करना आसान
आसान थोड़ी है सर। बस वही समझो कि वो एक अपने आप में एक पूरे 1 घंटे का लेक्चर है कि कैसे एक डॉग को पकड़ा जाता है और कैसे उसको रखा जाता है, कैसे उसको भी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। हम उस इनह्यूमन नहीं कर सकते कि उसको वेटिंग फॉर डेथ, कि हो सकता है सर्वाइव भी कर जाए। तो उनको कैसे भी वो उनकी जी। डेथ हुई, फिर कैसे ब्रेन, लेकिन और उसका इतने सारे तो जो डॉग्स हैं उनको मंकीज ने काटा हुआ है, जो कि रेबिड मंकीज हैं। तो मंकी ने डॉग को काटा हुआ है, तो डॉग ने ह्यूमन को काटा है, तो मंकी भी डायरेक्टली ह्यूमन को काट लेते हैं। कोई एक एनिमल केवल तो है नहीं। बिल्कुल जी। तो बड़ी मतलब उसमें छोटी सी बात यह है कि जो रेबिड डॉग का ब्रेन है उसको ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। एंड ये जितनी मेरी रिसर्च हुई सारी मैंने अपनी जेब से पैसे खर्चे। तो किसी को पकड़ना, उसको एक्स्ट्रा पैसे देने कि यार तू ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, और फिर उसको टैक्सी करके देनी, फिर वो मतलब फिर वहाँ जहाँ जाता वहाँ भी प्रॉब्लम होती थी कि तुम रोज कोई ना कोई ब्रेन लेके चले जाते हो। और वेरी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एक्चुअली, जो इस लिमिटेड टाइम में शायद पूरी नहीं हो सकती। तो anyway, रेबिड डॉग जो होता है उसका ब्रेन टेस्ट करना पड़ता है ब्रेन में से। बिल्कुल। आई सी। तो काफी चैलेंजिंग है सर। आप समय तो हमारे पास कम ही है, अभी तो 10 मिनट बचे हैं। फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं, आप ज्ञान को उजागरता मानते हैं, आप सक्षमता में, आत्मबल में, आत्मनिर्भरता में भी विश्वास रखते हैं। पर इस सब के बीच में मैं ये भी देखती हूँ कि आपके बिल्कुल पीछे मैं एक भगवान की मूर्ति, छोटा सा मंदिर भी देख रही हूँ। और जब इंसान इतना ज्यादा जिंदगी और मौत की जूझ को देखता है और उसके लिए इतनी मुहिम लड़ता है, अपने आप से भी दूसरों से भी, आप क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सफर जो है वो भगवान की आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें कई बीच में ऐसे मोड़ आए जब मुझे लगा कि ये मुझे पूरा ये सफर पूरा नहीं होगा, ये जो रिसर्च शायद नहीं पूरी हो पाएगी। लेकिन उसी वक्त कोई फरिश्ता बन के आएगा और बोलेगा नहीं चलो जी हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। तो इस तरह से WHO में भी 1-2 लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरी रिसर्च पे बिलीव किया और औरों को बोला कि तुम चैलेंज करके बताओ तभी हम मानेंगे। ये मत कहो कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसकी पहले कोई पेपर नहीं छपा है, इसलिए इसकी स्टडी जो ठीक नहीं है। तो बल्कि इंडिया से भी कुछ लोगों ने लिख दिया कि इसकी इंक्वायरी की जाए, ये सर इंडिया की स्टडी जो है वो ऐसे ही होती है, दे आर नॉट क्रेडिबल। तो इस तरह की कंप्लेंट्स यहाँ से WHO को गई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जिसको ना दुख देने वाली बात है कि एक तो अपनी जेब से आप लाखों रुपए लगा रहे हो, हजारों में नहीं, और ऊपर से आपके अगेंस्ट एक पूरी मुहिम खड़ी हो जाए। आई डोंट नो, नोबडी एक्चुअली कोई चाहता नहीं है कि सस्ता इलाज हो। वो मैंने सीखा कि हर पल पे कोई नहीं चाहता कि बोलते समय सस्ता हो, लेकिन जब सस्ता होने लगता है तो उसको स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट टू द पॉलिसी लेवल सब लोग जो है वो अपोज करते। सो दैट इज वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो हमने फेस किया है। सर, सस्ता और सरलता दोनों आमतौर पे नहीं मिलती एक ही बात में, तो आपने सरलता भी इलाज में लाई और आपने उसको महंगाई से भी मुक्त किया। तो ये दोनों चीजें, और जो मैं आप में देख रही हूँ, आपने सरलता भी लाई, सस्ता भी बनाया, पर मैं आप में बहुत सहजपना भी देख रही हूँ। आपके बिल्कुल पीछे एक तस्वीर है जो शायद आप ही के अवार्ड की है। हाँ, पद्मश्री की है एक्चुअली। आप पीछे ज्यादा देख रहे हो, आगे कम देख रहे हो। आप मुझे बताएं सर, जब आपको पद्मश्री मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? इतने सालों की यातनाएं, कठिनाइयां और जंग, और उसके अंत में कोई आपके कार्य को सम्मानित कर रहा है, मान दे रहा है, कैसा महसूस हुआ सर? डेफिनेटली इट वाज ए प्राउड मोमेंट, क्योंकि maybe I'm one of the youngest doctors getting Padma Shri at this age. I think that was a great of the government, and पहले तो मैं कहूँगा कि great of WHO कि they believed my research, they trusted my data, and हमारी उसमें भी हमारी एक जो टीचर जो मेरी गाइड रही थी मास्टर्स की, PG की, उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी कि कभी भी डेटा से टेम्परिंग मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली माई डेटा वाज वेरीफाइड बाई ऑल मैकेनिज्म्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी कि टेम्परिंग तो नहीं है। तो I qualified all those parameters of WHO. So that was a great thing. So data tampering जो कभी हमारे PG स्टूडेंट भी I understand sir, what they call as plagiarism is very important. And when we talk of intellectual property rights, IPR, और मुझे भी इसकी समझ तब आई हमने जब रिसर्च करी पोस्ट ग्रेजुएशन में,
तो वो बात अलग थी। पर जब मैंने पीएचडी करी, और मैंने भी डॉक्टर होते हुए पीएचडी करी, और इसीलिए करी क्योंकि मैं भी कुछ सामने लाना चाहती थी, तब समझ में आया। आपने सर रिसर्च पेपर्स फिर पब्लिश करे, कुछ किताबें लिखी, कुछ आपके नेम के तहत कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ चैप्टर्स वगैरह छपे? या श्योर कहाँ पे सर? मेरे 2 चैप्टर हैं आईएपी के ऑन रेबीज, तीसरा पैथोफिजियोलॉजी पे अभी पब्लिश होएगा आने वाले टाइम में। बाकी बुक्स मेरे थीसिस की हैं, कुछ मेरी पोइट्री की 4 बुक्स हैं। तो सर कुछ तो छंद और जुमले आपको सुनाने ही पड़ेंगे। नहीं बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं सर, छोटा सा सुनाए, पर सुनाए जरूर। नहीं, अभी तो इतनी जल्दी कोई ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली मैं तो इतना कह ही सकती हूँ कि आपने जो कार्य किया है उसमें अगर सर आपके बगल में कहीं पास में है तो कुछ आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपने जो कार्य किया, कार्य तो बहुत से लोग करते हैं, पर आपने जो कार्य किया है वो जो बच जाएगा ना सर, उसके लिए ये जो कहते ना, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ कौन देखता है, मैं कल जो ना यहाँ से गुजरूंगा कौन देखेगा, कुछ तो अपने कदमों निशा छोड़े जाओ। तो आपने सर जो कार्य किया है वो बहुत ही सबल और बहुत ही निडर काम भी किया है। बिकॉज ये जो हमारी बीमारी है इसमें लोग कितना डरते हैं उन एनिमल्स के साथ या उस सलाइवा के साथ डील करने में, जो आपने किया है। जी सर, खूब इंतजार है मुझे। तो खुशी की बात यह है कि अब क्योंकि यहाँ हिमाचल में सस्ता इलाज की वजह से दोनों वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन फ्री हैं, तो पिछले 2 साल से देयर इज नो डेथ ड्यू टू रेबीज। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। कमेंडेबल सर, और कमेंडेबल। हम सर आप जो बता रहे थे कि आपने वो रेबिड डॉग डॉक्यूमेंट करे, फिर आपने उस इम्यूनोग्लोबुलिन लोकली इंजेक्ट किया सर? हाँ, लोकली इन्फिल्ट्रेशन। सर आप जब पन्ने पलट रहे हैं आपकी किताब के शायरी के, हम तो बहुत ही इंतजार कर रहे हैं। या मैं अब कुछ भी मेरे हाथ में आ रहा है वो पढ़ रहा हूँ। इस तो बहुत सारी पोइम्स हैं। एक मैंने लिखा बड़ा आदमी, ये अभी का नहीं, तब मैं छोटा ही था, अभी थोड़ा सा बड़ा समझने लग गया हूँ अपने आप को। तो मैं तब लिखा कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे भगवान समझने की गलती मत करना। अक्सर ऐसा होता है। मैंने भी एक इंसान की तरह जीवन के हर पहलू को जिया है, जीवन का हर जहर पिया है। मेरी भी कमजोरियां रही हैं जिन्हें छुपाते हुए अच्छाइयों को आगे लाते हुए बढ़ा और उनकी नजरों में महान बन गया, लेकिन फिर भी कुछ बुराइयों को जीत ना सका। शायद मनुष्य होने को अभिशप्त था मैं, इसीलिए लुभाती रहीं ये बुराइयां मुझे मरनासन तक, उनको मैं भुला ना सका। अभिशप्त था मैं इंसान होने के लिए। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। जैसे वो कहते हैं ना कि जो ऊंचा होता है वो बरगद की पेड़ की तरह ऊंचा होता है, और उसकी ऊंचाई को नहीं नाप सकते हम। सो जो ऊंचा होता है और जो ऊंचा बनता है या ऊंचा बनने की आकांक्षाएं उस बादल की तरह रखता है, वही सर ये लिख सकता है जो आपने अपनी कविता में बद्ध किया है। और सर कुछ ना कुछ तो गीत हम आप सुनना ही चाहेंगे जो आपके मन में आए। गीत अब क्या सुनाए आपको? सर ये असली वाले डॉक्टर हैं आप। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवरे भी हैं बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको हमारी कसम लौट आई। बहुत खूबसूरत सर। जाते जाते सर मैं आपसे 2-4 बातें और करती जाऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट में पूछती हूँ, चाहे 2-2 लाइनों में आप जवाब दें। सर एक ऐसा पड़ाव जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, वो कौन सा मोमेंट था?
वो जब वो पड़ा वो था जब जो मेरे से सीनियर लोग थे उन्होंने इस प्रोटोकॉल को नहीं माना और मुझे लगा कि अब तुझे ही करना पड़ेगा। दैट्स हाउ आई डिड इट नाउ। सर दूसरा सवाल, आपके मेडिकल करियर में वो कौन सा सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला पेशेंट या किस्सा था? दिल दहलाने वाला पेशेंट वही था जो मैंने आपको बताया कि वो उसको वैक्सीन लगी थी लेकिन वो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगी। टैक्सी ड्राइवर? सॉरी, टैक्सी ड्राइवर? नो नो नो, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, जब मैंने टैक्सी ड्राइवर पे तो हमने वैक्सीन के पे काम शुरू किया, लेकिन इसके मरने के बाद हमने इम्यूनोग्लोबुलिन पे काम शुरू किया। इट्स अ वेरी पेनफुल डेथ। डिफिकल्ट आपके लिए कौन सा केस रहा जो आप ट्रीट कर रहे थे? डिफिकल्ट तो मेरे लिए केस तो नहीं रहे, लेकिन एक वकील साहब जरूर रहे जो थ्रेट कर गए थे कि मेरे को कुछ हुआ तो मैं तुम किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रोटोकॉल अच्छा, उनका ट्रीटमेंट किया था आपने? हाँ, वो उनको कहीं मिली नहीं इम्यूनोग्लोबुलिन, तो गए थे प्राइवेट में, लेकिन जब नहीं मिली तो किसी ने बोला वहां जाओ, फिर हम कंसेंट फॉर्म भरा रहे थे, वो नहीं भर रहे थे, तो काफी आर्गूमेंट हुई कि मुझे तो ऐसे लगानी है। तुमने कहा भी आप बाहर से ले आओ लगा लो, तो देन ही सेड कि नहीं मेरे को यही लगानी। मैं ये तो नहीं लगेगी क्योंकि ये आप 5 लोगों की वैक्सीन आपको नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन आपको नहीं लगा सकते। तो कई वाइल्ड में तो 10-15 लोगों की भी निकल आती थी यदि कम लगी तो देन लॉट ऑफ आर्गूमेंट एंड लॉट ऑफ, फिर उन्होंने आरटीआई कर दी, फिर कई कुछ कर दिया, तो आई मेंटली उन्हें काफी परेशान रखा हमें। तो ट्रीटमेंट से कोई डर नहीं लगा। सर आज आपकी वाइफ और आपका परिवार आपको इतना अच्छा कार्य करते देख, इतना सम्मानित होते देख क्या महसूस करते हैं? Obviously they feel very proud। क्या उनको इतना टाइम में शायद कहीं लगता था कि ये पता नहीं क्या करता है, और बिल्कुल जैसे एक सेंट्रिक टाइप होता है, बंदा रात रात भर पढ़ रहा है, सो नहीं रहा है, तो वो केवल इनको लगता था पता नहीं क्या कर देगा ये उल्टा सीधा। तो फिर उनको लगा कि नहीं ठीक काम किया है और WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया। तो और बाहर के लोग भी, बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारे मेरे को मैसेज आते हैं कि हमारे कितने $1000 बच गए हैं, पेशेंट बच गए हैं, तो अच्छा लगता है। कॉल्स भी आती हैं और मेल्स भी आती हैं, अच्छा लगता है। सर आपके बच्चे क्या इसी कार्य पर फॉलो करना चाहते हैं? नहीं, वो कोई फॉलो नहीं करना चाहते। उनके अपने ऑब्जेक्टिव में। बेटी मेरी नाहन मेडिकल कॉलेज में अब 3rd ईयर में हो जाएगी एमबीबीएस में, और बेटा मेरा गायनी में पीजी कर रहा है वेटरनरी कॉलेज में पालमपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप मुझे बताएं कि अब जब आप इतने छोटी उम्र में सम्मानित हुए हैं और आपने इतना बड़ा कार्य करा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आपके सामने वो कहते हैं ना 0/2030 गोल है कि रेबीज की वजह से डेथ्स मिट जाएं, तो हम जानते हैं कि 28 सितंबर रेबीज डे है, जो कि लुई पैस्चर जिन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी उनकी डेथ का डे है। इतने महान लोगों की लेगेसी के साथ अब आप जुड़ गए हैं, तो आप अपने आप को आगे के दिनों में एक परिवर्तन लाने वाले पुरुष के रूप में अगला क्या बड़ा कार्य या पड़ाव अपने सामने देखते हैं, समक्ष देखते हैं? देखिए, हमने हिमाचल मॉडल एक खड़ा किया है जिसमें अब ऑलमोस्ट हम 0 डेथ है, या कभी पिछले सालों में भी किसी की डेथ हुई तो वही है जो लोग डॉग बाइट के लिए इंजेक्शन लगवाने नहीं गए ड्यू टू वट एवर रीजन, क्योंकि फ्री हैं। तो ये मॉडल जो है वो WHO की जो हेड है जीनोसिस की, डॉक्टर बर्नाडेट, वो भी यहाँ आई थी, वो सारा देख की, और उन्होंने कहा कि ये मॉडल हिमाचल का जो है इट शुड बी रिपीटेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई होप विद हर दीज ब्लेसिंग्स we hope to achieve 0 by 2030 rabies death. That's what we are hoping, and I am in collaboration with WHO and Government of India also. उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और कार्य करने वालों की ही जीत होती है। बिल्कुल। इसी के साथ लेजेंड्स ऑफ मेडिसिन शो पे मैं सबसे इजाजत लूंगी। जाते जाते एक बारी डॉक्टर उमेश कुमार भारती पद्मश्री से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी कि क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ शब्द? और मैं अपने जो मेरे डॉक्टर्स हैं यही कहूँगा कि यदि हमारी पेशेंट के लिए सेंसिटिविटी है तो कभी कभी हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि जो कि ग्लोबल नॉर्म बन जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो वी शुड रिमेन सेंसिटिव टू द पेशेंट्स, एंड वही हमें एक ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेजेंड्स ऑफ मेडिसिन शो पे मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी शो मॉडरेटर, आज डॉक्टर उमेश कुमार भारती के समक्ष हूँ। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आज हमारे सामने एक ऐसे महापुरुष हैं जो कि कार्य में विश्वास रखते हैं, बहुत ही सिंपल सहज पुरुष हैं,
काफी मेहनत से आगे बढ़े हैं, कठिनाइयों और यातनाओं के साथ जूझे हैं, हार नहीं माने हैं, अभी बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं और कला से परिपूर्ण है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। उनके अंदर का जज्बा, उनके अंदर का कवित्व, उनके अंदर संगीत और उनके अंदर ज्ञान बांटने की इच्छा बहुत ही सराहनीय है। Thank you, everybody. This is Dr. Pooja Diwan, your show moderator, and today I end this show after a lovely and a lengthy discussion with Dr. Umesh Kumar Bharati, who is challenging the elimination of rabies by 2030 in conjunction with WHO. The multifaceted, multi-pronged, multi-talented Dr. Bharati, who has enamored us with his singing talent, with his poetry, with his intent to light the flame of literacy, to not give up, and we still look forward to his further contributions and innovations in the light of social service and his upholding service before self. Thank you so much. Goodbye. Thank you very much, Omni Kiris and Dr. Pooja.